Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is fault and no-fault liability under tort law, which is provided by the Motor Vehicles Act 1988. In the course of today's video, I'll explain you guys with both of these terms as well as their distinction and the scenarios in which one of them may be applicable. Now without further ado, let's look into the PPT. So now as you guys can see, we have jumped into the PPT of fault and no fault liability. So the first part is introduction. Fault and no fault liability are two concepts pertaining to the tort law. Both of these concepts were added in the Motor Vehicles Act 1988. यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे दैट एक पर्टिकुलर किसी एक बंदे का फॉल्ट और एक फॉल्ट ना होना कैसे एक लायबिलिटी को क्रिएट करता है अंडर द टॉर्ट लॉ. ये दोनों पर्टिकुलर चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ऐड की गई थी एज वेल एज इन द मोटर्स व्हीकल एक्ट 1988. बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वी विल स्ट्रिक्टली फोकस ऑन द मोटर्स व्हीकल एक्ट, नॉट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, व्हाट इज फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी? A fault is a type of liability in which the plaintiff must prove that the defendant's conduct was either negligent or intentional. एक fault based liability को prove करने के लिए एक plaintiff को always दिखाना पड़ेगा that जो कोई भी defendant है उसका act या तो intentional था या तो negligent था. In this particular liability, the intention of the state of mind of a person is relevant to the ascertain his liability. कि उसकी liability को prove करने के लिए उसका state of mind बहुत important चीज़ होती है. उस चीज़ से हम देख सकते हैं whether the act was intentional or negligent. A person can be held liable for only for the harm caused by him due to the breach of his duty. कि किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है तो ही उस चीज़ के लिए हम उसको फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर लायबल कर सकते हैं. In such cases the court must see whether the wrongful act was done intentionally or negligent. So to determine that the act is intentional or not is a test conducted, that is the reasonable man's test. Okay, to ascertain the intention of the defendant we apply the reasonable man test, in which we compare the conduct of the defendant with that of a reasonable man. कि जहाँ पे एक reasonable man के conduct से defendant के conduct को always compare किया जाता है, जिसकी मदद से court can determine whether the particular act was negligent or not, and on the basis of this कि एक particular situation के अंदर रख के उस चीज़ को liable माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, वो court देखेगी. What is no fault liability? There are certain situations where knowledge or intention does not matter and the person can be held liable even without having any wrongful intention or negligence on his part. In such case, the innocence of a proper care of the defendant are no defense. This is called a no fault liability. कुछ सिनेरियोज के अंदर इवन दो हमारा कोई भी फॉल्ट बनता नहीं है, हमसे कोई भी गलती या कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट हुआ नहीं है, या तो फिर किसी भी प्रकार का इंटेंशनल एक्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी हमारे ऊपर लायबिलिटी लग सकती है. इसके तीन एग्जाम्पल हैं, अल्टीमेटली दो हैं जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बट वाइकेरियस लायबिलिटी को भी हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं. हमने इन तीनों लायबिलिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना के रखे हैं. ठीक है, प्लीज़ आप हमारी चैनल जो है judicialdream.com पे जाइए, आपको वहाँ पे वीडियोज़ और उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर और MCQ सब मिल जाएंगे. यहाँ पे हम उस चीज़ को ब्रीफली कवर करेंगे. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर ये बोला है दैट जब भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर रखते हो, वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी से भाग जाती है, लेट दैट बी एन एनिमल और अ केमिकल और अ गैस या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस, कि जिसकी वजह से सामने वाले को डैमेजेस होते हैं कुछ भी प्रकार के, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी. वेयर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हम लोग कैसा मानेंगे कि उसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस. की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया या इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर प्लेंटिफ का कंसेंट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया. ये सब चीज़ें जो है उसके एक्सेप्शंस है. अगर वो सभी चीज़ें हटा दें तो जो लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी दैट विल बी एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है MC मेहता वाला केस, गैस लीक वाला केस, कि जहाँ पे गैस लीक हुई थी वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि दैट कंपनी इज़ एब्सोल्युटली लायबल,
कि जो कोई भी डैमेज हुआ है वो भले ही आपकी गलती से हुआ हो या आपके एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ, यू विल बी द सोल पर्सन लायबल, एज कि वहाँ पे वो फैक्ट्री के ऊपर आपका नाम लगा हुआ है। वेरेज इन वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो हमारा वो मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल एजेंट वाला प्रिंसिपल आ जाता है, दैट कि सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर लायबल है। तो इन सभी सिनेरियोस के अंदर टेक्निकली जो डिफेंडेंट है उनका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनसे कोई प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि उनके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं या तो वो जिस लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन लोगों ने कुछ गलत काम किया है नेग्लिजेंटली या इंटेंशनली, जिस चीज़ की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम लायबल मानते हैं, तब वहाँ पे आके लगता है नो फॉल्ट लायबिलिटी। काफ़ी बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. उसके बाद आते हैं इसके कुछ मैंने डिफरेंसेस लिस्ट आउट करके रखे हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन, कि फॉल्ट लायबिलिटी के केसेस के अंदर ऑलवेज जो है कॉम्पनसेशन डिफेंडेंट देता है। जो कोई भी कॉम्पनसेशन जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको प्लेंटिफ को इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो दैट कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द डिफेंडेंट्स पॉकेट और एल्स हिज इंश्योरेंस कंपनी। बट वेरेज यहाँ पे कैसा है कि नो फॉल्ट लायबिलिटी नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का डिफेंडेंट से कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे जनरली जितना भी कॉम्पनसेशन मिलता है या तो फिर प्लेंटिफ को उनके खुद के इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है या तो फिर गवर्नमेंट फंड से मिलता है। जैसे कि कोई भी ऐसा एक्ट हो गया, जैसे कि वो MC मेहता वाला केस ही ले ले, जहाँ पे कॉम्पनसेशन इतना डिक्लेयर किया गया था कि जहाँ पे अराउंड 2300 लोगों की डेथ हो गई थी, तो पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन डिफेंडेंट के पॉकेट से नहीं आया था। उसमें से मेजर शेयर जो भी है वो उनकी इंश्योरेंस कंपनी से आया था, कि जिन्होंने उन चीज़ों के लिए इंश्योरेंस लेके रखा था ऐसे सब सिनारियोज के लिए, वो सब चीज़ें वहाँ से आई थी। वैसे अगर वो वहाँ पे कुछ जिनके 3-4 लोगों को डैमेजेस हुए होते तो वो उनके खुद के पॉकेट से आता, ना कि वो इंश्योरेंस कंपनी से आता। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर। तो जैसे कि हमने पहले समझा कि फॉल्ट लायबिलिटी के केसेस के अंदर हमें डिफेंडेंट का एक फॉल्ट प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नेबर जो है वाई, मेरी उससे कुछ खास बनती नहीं है, बट मैं फ्लावर्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ कि मेरे घर के बाहर 15 से 20 प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोजेस एंड जैस्मिन मैंने उगा के रखे हुए हैं। एक दिन वाई जो है वो मेरे घर पे आता है बहाना बना के मुझसे बात करने का, बट अल्टीमेटली वो जाते जाते मेरे एक फ्लावर पॉट के ऊपर हाथ रख के जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। मुझे पता है कि वाई ने ये पर्टिकुलर चीज़ इंटेंशनली की है, बट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोर्ट के अंदर। मुझे उसके प्रीवियस एंटीसीडेंट्स रखने पड़ेंगे कि उसने पहले मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। मुझे उस सभी चीज़ों के लिए CCTV प्रूफ्स ला के देने पड़ेंगे, एज वेल एज एफिडेविट्स फ्रॉम अदर नेबर्स। मुझे ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके मैं कोर्ट के सामने ये चीज़ कह पाऊँगा दैट वाई डिड दिस एक्ट इंटेंशनली एंड नॉट नेग्लिजेंटली। ठीक है, whereas in no fault liability वो पर्टिकुलर चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड होती है कि डैमेज हो चुका है, वो हमें दिखाने की ज़रूरत या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कि किसी भी प्रकार का ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, या जैसे कि आज के दिनों में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी बार नोटिस की है दैट ट्रेन्स का भी एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन्स डीरेल्ड हो रही है, या तो फिर 2 या 3 ट्रेन आपस में कोलाइड हो रही हैं। ये हमारे इंडिया में काफ़ी बार हो चुका है अभी भी। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों को हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, ये चीज़ हो चुकी है, इस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वैरेज ऊपर वाले सिनेरियो के अंदर कैसा था कि जब भी ये पर्टिकुलर जिस डिफेंडेंट के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज की जाती है तब उसके पास डिफेंसेस होते हैं दैट ये नेग्लिजेंट एक्ट था, मुझसे गलती से हो गया था, ठीक है। वेरेज नो फॉल्ट लायबिलिटी में आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप उसके दायरे के अंदर आ चुके हो एक बार, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसके लिए मैं नहीं कोई और लायबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो काफ़ी शॉर्ट रहती है और यहाँ पे डायरेक्टली कॉम्पनसेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो आइदर इंश्योरेंस कंपनी देती है या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो ट्रेन कोलाइड के एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे किसी एक बंदे का कोई टर्म प्लान है, तो उसके गुजर जाने के बाद टर्म प्लान का पैसा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट फंड जो डिक्लेयर होता है, कोई भी एक अमाउंट लो, 1 लाख रुपए हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, तो वो डिसीज को मिल ही जाता है। तो इन केस ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी यहाँ पे जनरली इंश्योरेंस कंपनी का रोल ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास आजकल टर्म प्लान होते ही हैं। अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट फंड तो उनको वैसे ही मिलने वाला है, अगर है तो उनको दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस कवरेज के ऊपर कि इन केस ऑफ फॉल्ट लायबिलिटी द इंश्योरेंस ऑफ कंपनी ऑफ द डिफेंडेंट पेज, कि जहाँ पे डिफेंडेंट की इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आप जैसे भी एक चीज़ समझ लो कि मैं मेरी कार लेके जा रहा था, ठीक है, आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो वो पर्टिकुलर मेरी कार मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाई और मैं जाके किसी खंबे में जाके लड़ गया। इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो टेक्निकली मुझसे डैमेज जो हुआ है वो खंबे का हुआ है, बट एक्चुअल में जब मेरी कार को हटाया गया तब खंबे पे खाली स्क्रैचेस थे, उसके ऊपर डेंट भी नहीं था और मेरी कार का बम्पर टूट गया और रेडिएटर टूट गया। इस सिनारियो के अंदर मेरी डिफेंडेंट कंपनी, मेरा मतलब मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी टू रिपेयर माई कार एज आई हैव टेकन द इंश्योरेंस फ्रॉम देम, ठीक है। इन केसेस ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, जैसे कि समझ लीजिए कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या तो फिर आपको लेट से कोई बीमारी हो गई जिसके अंदर खर्चा कुछ ज़्यादा आ गया, तो उसमें टेक्निकली आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल प्रॉब्लम। बट उस चीज़ को हम ना तो एक्ट ऑफ गॉड मान सकते हैं ना तो इनएविटेबल एक्सीडेंट मान सकते हैं। यंग एज के अंदर ये हार्ट की प्रॉब्लम्स होना या लिवर की प्रॉब्लम्स होना या लंग्स की प्रॉब्लम होना, दैट इज़ नॉट समथिंग कैन एवरीबडी कैन प्रिज्यूम। तो इस सब सिनेरियोज के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो प्लेंटिफ की इंश्योरेंस कंपनी खुद कवर करेगी रादर देन डिफेंडेंट की कंपनी उनको पे करेगी। कि यहाँ पे एक और डिफरेंस ये आके निकलता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केसेस। तो जैसे कि पर्सनल इंजरी, मुझे कोई डैमेज हो गया या मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया या किसी और को डैमेज हो गया, वैसे नो फॉल्ट केसेस सच एज इंश्योरेंस क्लेम हो गया या जिसके लिए हम ऑटोमोबाइल्स के लिए क्लेम करते हैं, तो फिर मेडी क्लेम हो गया। ये सब चीज़ों के अंदर भी क्या बोलते हैं कॉम्पनसेशन जो है वो उनकी खुद की कंपनी प्रोवाइड करेगी। जैसे कि कार के ऊपर बिजली गिर जाना या तो फिर कोई गाय ने हमारी कार पे आके कुछ डैमेज कर दिया, सींग लगा के क्या बोलते हैं डेंट बना दिया वहाँ पे, ऐसा सब सिनारियोस के अंदर जहाँ पे हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं बनता है फिर भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है, ठीक है। So by this slide our lecture is effectively over. If you guys want to see more lectures like this, please subscribe to our YouTube channel, that is Judicial Dream. And if you want to see descriptive answer of such videos, then please log on to our website, that is judicialdream.com, where you will find a lot of MCQs about many topics which will help you in your competitive exams and in your regular law school exams. So once again I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.